Therefore, in this chapter, chapter number 12, we will study different books which are subdivision of journal, and they help to maintain different books for different type of transactions. Transactions of similar nature are recorded in these type of books, different books. Already we have studied one, cash book. And cash book you show only the transactions which involve cash. Transactions involving cash purchase, when the goods are sold in cash, payments are made in cash, payments are received in cash. Only those transactions related to cash were recorded in that particular book called cash book. No outstanding, depreciation, non-cash transactions were not recorded in the cash book. Outstanding, accrued income which is not received was also not recorded in the cash book. Then second, petty cash book for small expenses. It was also done. Then there is purchase book, sales book, purchase and purchase return, sales and sales return book. These books you will now study in this particular chapter. Purchase book, purchase return book, sales book, sales return book. These four books we will study in this particular chapter, and all these books have common specialistic feature which I will tell you. Bill receivable, bill payable books are not here. Okay, only main four books we have to study: purchase book, purchase return, sales book, sales return book, and journal proper. All those entries which will not find place in any of the books, subsidiary books. Make a note, all those transactions which will not find place in any of the book will be recorded in journal proper, in journal book. Keep your cameras on. Sarthak, is this the way you come to a class? Leave the class. Leave the class. Sir, actually my shirt, sir, I am searching my shirt. My shirt I have kept somewhere. I am not finding. In business class, I will be in the school uniform only. And how you are sitting? Tejaswani, turn the camera on. Tejaswani, turn the camera on or leave the class. Four books: purchase book, purchase return book, sales book, sales return book. And importantly, note down cash transactions are not to be recorded in these books. Very important. Any transaction in which cash is involved is not recorded in these books. Purchase book and sales book are meant for recording only credit transactions.
purchase of goods on credit, sales of good on credit, goods. दो बातें आपको बहुत अच्छी तरह याद रखनी है कि ओनली गुड्स परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स will be recorded in these books. That also only credit purchase and credit sales of goods will be recorded. अगर कैश में खरीदी जाएंगी गुड्स, कैश में बेची जाएंगी गुड्स, you will ignore that entry. क्वेश्चन में तो आपके दी होगी, but you will not record it in purchase book or sales book. और परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न में वही सामान आपका आएगा जो आपने पहले खरीदा होगा या पहले आपने बेचा होगा. So only those transactions will be recorded which are on credit. Number third, very important, sale and purchase of assets will not be recorded. Sale and purchase of assets will not be recorded. Again, very important point. Sale and purchase of assets will not be recorded. Note down very clearly. ये हमने सारे पॉइंट इसके लिख दिए. I hope it is clear. Anybody would like to ask anything? Please. Whatever is explained till now, if there is anything you would like to ask, ये आपको हमने जिस्ट में बता दिया, because when you are solving, you are going to solve numericals, then you have to keep all these points in the mind. ये पॉइंट अगर दिमाग में रखेंगे तभी आप उसे सॉल्व कर पाएंगे. इट इज अ वेरी इजी चैप्टर. एक क्वेश्चन इसमें से 4 मार्क्स में मिनिमम या फिर 6 मार्क्स में मैक्सिमम पूछा जाएगा. नो 8 मार्क्स क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर. मिनिमम 4 मार्क्स, मैक्सिमम 6 मार्क्स, जिसमें आपको कोई बुक बनाने को आएगी बस. आइदर परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, sales return book, and this is very easy chapter. By Monday you can finish this. Today is Friday, Saturday, Sunday, Monday. In 4 days you can finish this chapter, because you have to only prepare, you have to only learn to prepare all these 4 books only. Journal you already know. All those entries which will not be recorded in these books, उसकी आप जर्नल एंट्री करेंगे. That's all. मान लीजिए आपने फर्नीचर परचेज किया, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश और परचेज्ड फर्नीचर ऑन क्रेडिट, तो परचेज बुक में तो वो एंट्री हो नहीं सकती, क्योंकि वो एंट्री किसमें होनी चाहिए? कैश बुक में. अगर आपने फर्नीचर परचेज किया है कैश में, अगर आपने फर्नीचर परचेज किया उधार में, तब भी वो परचेज बुक में नहीं हो सकती, बिकॉज फर्नीचर इज नॉट गुड्स, इट इज एन असेट. So it will be recorded in journal proper, और उसकी जर्नल एंट्री करेंगे आप. और जर्नल एंट्री आपको पता ही है क्या होगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट और फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश. अगर उधार पे खरीदी है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू XYZ to the supplier. So it is a very easy chapter, the most easy chapter, and in this book
only you have to learn to record the purchase and sale of goods. उसमें आपको कुछ नहीं करना है, यूनिट उसमें दी होंगी, 5 fans costing ₹1000 each sold, तो बड़ा आसान है, 5 into 1000 आपने अमाउंट लिख दिया वहां पर, राइट। मतलब जैसे कोई दुकानदार सेल और परचेज के टाइम पे बिल बनाता है, आपको इसमें बिल बनाना है एक तरीके से, राइट। एक तरीके से आपको इसमें परचेज बुक में पर मंथ क्या सामान आपने परचेज किया है, उस पर्टिकुलर गुड्स और आइटम का जिसमें आप डील करते हैं, वो भी उधार में, आपको उनका नाम लिखना है जिनसे उधार में खरीदा है, उसमें आपको वाउचर नंबर वगैरह लिखने, और उसके बाद आपको जो है क्या सामान खरीदा है, कितने का खरीदा है पर पीस, और टोटल कितना आइटम दिया है, उसमें आपने जीएसटी कितना दिया है, ये सब नोट करके एक तरीके से बिल बनाना है कि इतना हमने इस महीने गुड्स परचेज किए, इतने हमने इस महीने गुड्स सोल्ड किए, इतना हमने इस महीने गुड्स परचेज रिटर्न किए, ये गुड्स जो है वापस आई है, सेल्स रिटर्न। सो ऑल दीज एंट्रीज यू हैव टू डू इन दीज 4 बुक्स which are very very simple. अभी आपको इसका फॉर्मेट बताएंगे, but before that once again I am revising this chapter number 12, subsidiary books, or these are also known as subdivision of journal, because the journal is divided into different books so that all the entries are not recorded in journal, because it becomes very difficult to retrieve from there. Retrieve मतलब अगर आपको कोई एंट्री उसमें ढूंढनी है तो बहुत मुश्किल होगा, परेशानी होगी, इसलिए हर एक चीज की सेपरेट बुक बना दी जाए, डिफरेंट ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर टाइप और नेचर अगर अलग अलग बुक में रखा जाए तो बहुत आसान है ढूंढना। परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कैश बुक, पेटी कैश बुक, बिल रिसीवेबल बुक, बिल पेबल बुक, ये सारी बुक्स नाम से ही पता चलता है कि इसके अंदर कौन सी एंट्री होंगी, किसको हमने कहाँ ढूंढना है, आसानी से हम जो है रिट्रीव कर सकते हैं। दैट इज व्हाई these books are also known as help books. These books are also known as help books. 8 books, subsidiary books, and all these books when they are prepared, तो कोई एंट्री अगर रह जाए इन बुक्स में आने से, कैश बुक को इंक्लूड करते हुए, कैश बुक एंड पेटी कैश बुक, तो फिर आप उसे जर्नल में करेंगे, मींस उसकी जर्नल एंट्री करेंगे। इन बुक्स में क्योंकि कैश बुक आप बना चुके हैं, कैश बुक में सारी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस आएंगी, तो फिर इन बुक्स में ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आएंगी, क्रेडिट परचेज एंड सेल्स ऑफ बुक, ओनली क्रेडिट परचेज एंड क्रेडिट सेल्स ऑफ ट्रांजैक्शंस विल बी रिकॉर्डेड इन दीज 4 बुक्स। कैश परचेज एंड कैश सेल ऑफ गुड्स will not be recorded in this. Those transactions will be recorded in the cash book. Number 2 very important, इसमें purchase of asset and sale of assets will not be recorded. अगर वो कैश में है तो कैश बुक में आएंगी, और अगर वो नहीं है उसमें क्रेडिट में है तो वो आपकी जर्नल में आएंगी। ये लास्ट के 3 पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंटली नोट डाउन। अब आप अपनी बुक खोल लीजिए, उसमें जो है फॉर्मेट देख लीजिए। आई एम नॉट मेकिंग द फॉर्मेट हियर, आप खुद बनाइए अपनी कॉपी में, बुक से देख के फॉर्मेट। ऑल ऑफ यू मेक द फॉर्मेट from the book, which is very simple. सभी बुक्स का फॉर्मेट बिल्कुल सेम है, ओनली 1 or 2 columns will change। लिखिए ऊपर फॉर्मेट ऑफ परचेज बुक। इसमें बहुत सारे कॉलम्स हैं, बट डोंट गेट कंफ्यूज्ड, डोंट पैनिक, दीज आर वेरी वेरी सिंपल। जब आप क्वेश्चन करेंगे एक, तो आप कहेंगे ये चैप्टर मैं आज ही फिनिश कर लेता हूं।
That is why I am giving you the importance. I am giving you the marking scheme also, that this chapter consists of this many marks. This chapter, इसमें आपके इस टाइप से ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, so that you prepare accordingly. Time management is very, very important. फॉर्मेट बनाइए बुक से देख के, फॉर्मेट ऑफ परचेज बुक. फॉर्मेट ऑफ परचेज बुक. सबसे पहले है डेट, सबसे पहले है डेट, किस डेट को आपने सामान खरीदा है. उसके बाद है पर्टिकुलर, जिसमें आपको लिखना है नेम ऑफ द सप्लायर, किससे सामान खरीदा है. और जिससे भी सामान खरीदेंगे पायल, वो पर्टिकुलर पार्टी और पर्सन विल बी आवर क्रेडिटर. जिससे सामान खरीदेंगे दैट पर्टिकुलर पार्टी और पर्सन विल बी आवर क्रेडिटर. तो वहां पर देखिए लिखा है अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, राइट. जिस भी पर्टिकुलर पर्सन और पार्टी का नाम हम लिखेंगे, हिज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बिकॉज ही विल बिकम आवर लायबिलिटी. वी आर परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम हिम. उसके बाद आपको लिखना है इनवॉइस नंबर, मतलब बिल नंबर. उसके लिए जगह बनाएंगे, लेकिन बिल नंबर नहीं दिया है तो उसे जगह को छोड़ देंगे खाली. लेजर फॉलियो, इन द लेजर ऑन व्हाट पर्टिकुलर पेज नंबर दिस ट्रांजैक्शन विल अपीयर. उसके बाद डिटेल्स, डिटेल्स में आपका अमाउंट आएगा कि कितना अमाउंट बना उसका. उसके बाद आपको बताना है कि कितना पैसा आपने दिया अलग अलग अकाउंट में. इनपुट, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, और टोटल अमाउंट आपने क्या पे किया. तो डिफरेंट कॉलम्स आप याद कर लीजिए. उसी के सामने आप देखिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है. क्वेश्चन पढ़िए एक बार, और क्वेश्चन पढ़ के मुझे ये बताइए आपको क्या लग रहा है कि सारी गुड्स और सारे आइटम्स जो इसमें है वो किस से रिलेटेड है. कैश will not be recorded is the first thing to remember while doing these type of questions. Subsidiary books. तो पायल ने ये पॉइंट पकड़ लिया कि 22nd of June the irons are purchased for cash. तो आप इस ट्रांजैक्शन को पहले ही कट कर दीजिए, इसको करना ही नहीं आपने. इसको कैश बुक में लिखना पड़ेगा. किसमें लिखना पड़ेगा इसे? कैश बुक में. उसके बाद है नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 28. 28 जून को मुस्कान, चेक कीजिए, 12 चेयर्स एंड 2 ट्यूब्स, टेबल्स, 12 चेयर्स एंड 2 टेबल्स खरीदी हैं. कहां हम सारी चीजें खरीद रहे थे इलेक्ट्रिक से रिलेटेड. अचानक से बीच में आ गई इसमें चेयर, फर्नीचर, टेबल. सो इट इज अंडरस्टूड it is not related to our business. It is an odd item, right? Mango, apple, guava, pineapple, और उसके साथ अगर आप कोई सब्जी का नाम ले ले तो that vegetable will be odd one. So you have to ignore
always the odd item from the list. It will be either asset or something else which is not related to the question we are doing. किसमें कितना परसेंट एसजीएसटी सीजीएसटी लगना है क्वेश्चन में दिया होता है. ट्रेड डिस्काउंट सबसे लास्ट में माइनस करेंगे. आप नेक्स्ट पेज में इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा. इट इज नथिंग मोर देन मेकिंग अ बिल. कोई भी बना सकता है ऐसे कि आपने जून 2 को सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर से खरीदे हैं 40 ट्यूबलाइट्स एट 500 ईच. इनवॉइस नंबर है 480, क्वेश्चन में दिया हुआ है. नाउ 40 ट्यूबलाइट ऑफ 500 ईच, टोटल अमाउंट हो गया 20,000. किसमें लिखेंगे? डिटेल्स में. 15 टेबल फैंस ऑफ 2,000 ईच, वो लिख दिया आपने 30,000. टोटल हो गया 50,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट उसमें दिया है 20%, क्योंकि ये आइटम्स कितने के थे? 50,000 के. उसमें 20% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया. माइनस करने के बाद टोटल आइटम्स हो गए गुड्स 40,000 रुपीज के. 40,000 रुपीज. On 40,000 rupees, you will charge CGST and SGST 6%, which you have to pay because you are purchasing the goods. दोनों पे 60%, 6% आपने चार्ज किया. 2400, 2400. अब जरा आगे देखिए, 3 कॉलम भरे हुए. परचेज वाले में आपने लिस्ट प्राइस लिख दिया उसका 40,000, 2,400 SGST, CGST एंड टोटल आपने लिख दिया टोटल में. इससे आसान तो कोई चीज नहीं हो सकती. फिर आपने नेक्स्ट आइटम लिया, फिर नेक्स्ट आइटम लिया, और वो 2 ट्रांजैक्शन आपने छोड़ दी, 22 तारीख वाली और 28 तारीख वाली. दे आर नॉट रिकॉर्डेड. और लास्ट में आपको नोट भी लिखना पड़ेगा कि क्यों छोड़ दिया आपने वो ट्रांजैक्शन. राइट? You will have to give a note also कि वो इसलिए नहीं लिखी है because it is in cash 22 तारीख, और 28 तारीख इसलिए नहीं लिखी है because it is asset. Purchase of asset is not recorded in purchase book. It is recorded in either cash book or in general proper. लास्ट में टोटल करने के बाद आप लिखेंगे परचेज अकाउंट क्या है. परचेज अकाउंट क्या होता है? डेबिट. जहां पर इन्होंने टोटल लिखा है वहां पर आप लिखेंगे परचेज अकाउंट और ब्रैकेट में लिखेंगे डेबिट. टुडे यू विल सॉल्व दीज क्वेश्चंस एंड आप जो है जब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे परचेज बुक की तरह बिल्कुल आगे बना होगा सेल्स बुक का फॉर्मेट, फिर परचेज रिटर्न का फॉर्मेट और फिर सेल्स रिटर्न. इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क मी टुमारो. ओके, ट्राई टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस as early as possible. We have to give more time to those chapters which need more emphasis, more attention, more time. This is very easy chapter. 3 days you can finish so that on Monday we can start the fresh new one. जनरल इसमें आपको पहले ही आता है. परचेज बुक आपने देख ही लिया कैसे सिंपल है, ऐसी सेल्स बुक बननी है, उसमें सामान बेचेंगे. परचेज रिटर्न में जो सामान खरीदा था उसे वापस करेंगे और सेल्स रिटर्न में जो सामान आपने बेचा था वो वापस आएगा. दैट्स ऑल. किसी क्वेश्चन में कोई भी ट्रांजैक्शन अगर इन बुक्स में नहीं आएगी तो आप उसको जनरल में करेंगे. आपके इसमें एक लास्ट क्वेश्चन होगा, 2 क्वेश्चन होंगे, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन, जिसमें बहुत सारी ट्रांजैक्शन दी होंगी. आपसे कहेंगे इनके लिए प्रॉपर बुक्स बनाइए, तो आपको उस क्वेश्चन में सारी बुक बनानी होंगी. कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और इवन जनरल एंट्री भी करनी होगी. That will show that you have already understood now all the books and you know very well which transaction will find place in what type of book. Thank you. God bless all of you.
Thank you, sir.